Good evening, everyone. I'm your host, Sudip Maiti, career designer. Welcome to Classroom to Boardroom Talk Show, episode number 17. We have gathered here to enlighten you about the different ways by which the transition can be happen from boardroom, classroom to boardroom. We'll discuss about the hurdles and challenges that come along the way. Take charge of your career and also listen to the different eminent persons who have excelled in their own fields. Today we have invited one of the great leader who has more than 2 decades of the entrepreneurship experience. He is a CEO in the corporate care in India, which is into the corporate leasing real estate, and also the CO in Paul's Fashion, which is which into the manufacturing ladies denim in retail. He is in a mission to empower 1 million startup business owners to attain more profit and sustainability through principle based coaching. So today we will talk about the topic called break the shackles and run. This is the topic we'll talk about in this topic. So welcome Mr. Rinkesh Sukiza in this particular talk show. So Mr. Rinkesh, can you please introduce yourself? Yeah, you can unmute. Yeah, Yeah, you can go ahead. yeah. Good evening, everyone. Thank you, Sudeep ji, for introducing me. So, जैसा सुदीप जी ने इंट्रोड्यूस किया, I have been into my own business for last 20 years. I have been into multiple startups. अगर मैं बात करूं, थोड़ा टाइम है तो I talk about my starting of my career. I started my career with the you can say we were into I was with my brother जब मैंने अपना स्टार्ट किया I was into college I was graduating तो brother का he was into his own business we were into uh, you can say hardware computer hardware business तो मैंने उसको ज्वाइन किया then meanwhile in business I was supporting him then he told me कि तू मेरे business से अच्छा why don't you go and uh, experience yourself go and look for a job then I looked for a job and I started my career into sales so we were basically into uh, डीमैट उस टाइम में डीमैट जो है it has been newly introduced so I was in डीमैट company they were into like opening डीमैट accounts so I used to go door to door लोगों के डीमैट्स अकाउंट्स हम लोग खुलवाते थे because I was टिपिकल थोड़ा सा जो है आई वाज लाइक इंट्रोवर्ट टाइप था because I was born and brought up in hostel from fifth class only I was sent to an hostel so I did my schooling and then graduation वगैरह जो मेरी सब हॉस्टल से हुई थी तो आई वाज नॉट सो मिक्स अप विद अदर पीपल क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं आप कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं so that's why I choose कि चलो my brother also even my some of my friends also told me to go and join sales so I went और काफी कुछ सीखने को मिला उसमें सेल्स में जो है बिकॉज जो है मेरा मानना है कि चाहे आप बिजनेस में हो या यू आर इनटू जॉब नंबर वन स्किल जो है दैट इज सेल्स अगर आपको सेल्स आ गई तो आई थिंक सो आप कहीं पे भी किसी भी स्ट्रीम में यू कैन ग्रो अप तो उसके साथ साथ जो है देन आई लाइक आई my father he was into government job and my mother she was also into government job तो when my father he was about to retire तो था कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे तो वी परचेज अ शॉप इन नोएडा रिटेल शॉप ठीक है रिटायरमेंट का उनको जो पैसा मिला वही परचेज अ शॉप कि वो जो है अपना रिटायर होके शॉप में बैठेंगे और अपना जो है ठीक है क्योंकि जो एक बारी जो जॉब में या बिजनेस में होता है ही कांट रिटायर होने के बाद भी उसको लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए
तो अनफॉर्चुनेटली जॉब के जो है 1 साल बाद माय फादर ही गॉट एन हार्ट अटैक एंड ही वी कुड नॉट सेव हिम। तो अब क्या करें? देन माय पेरेंट्स सजेस्टेड व्हाई डोंट यू लुक आफ्टर दिस शॉप, यू गो इनटू रिटेल। हालांकि मेरा मन नहीं था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो रिटेल, क्योंकि जॉब में वो रिटेल में जो है वो आप बैठे बैठे जो है आओ और कस्टमर का वेट करो। आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो देन ऑल्सो स्टिल आई वेंट कि अब ले रखी है शॉप तो व्हाई नॉट। तो वी आई स्टार्टेड रिटेल बिजनेस। तो उसके साथ साथ जो है आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन टू शॉप इन शॉप। उस शॉप इन शॉप कॉन्सेप्ट में लाइक आई ओपन स्टोर विद स्पेंसर्स। उस टाइम पे स्पेंसर्स लाइक बिग बाजार देयर इज अ स्टोर ऑफ स्पेंसर। तो आई मैंने जो है उसमें अपने आई वॉज इन टू लेडीज हैंड बैग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो उसके जो है मैंने काउंटर्स जो हैं आई ओपन। आई एम बेस्ड इन दिल्ली राइट नाउ, मतलब शुरू से ही दिल्ली में एंड नोएडा जो है मेरा काम था। माय शॉप वाज इन नोएडा। तो एंड लाइक स्पेंसर्स के शोरूम्स में जो है उनके रिटेल स्टोर में आए 3-4 प्लेसेस में, लाइक इन फरीदाबाद, गुड़गांवा, जयपुर एंड गाजियाबाद। 4 जगह पे मैंने स्टोर खोला एंड जो है बिजनेस वाज गोइंग गुड। लेकिन कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं मानता था उस चीज को ना, बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर रिटेल। मेरा जो है दिल से उस चीज को नहीं था। वन डे आई डिसाइडेड कि यार नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। मैंने जो है इन द मीन टाइम आई गॉट एन ऑफर। मेरे फ्रेंड्स के साथ जो है वी दे वर अबाउट टू ओपन अ हॉस्पिटल, मतलब दे वर planning to open a restaurant in Noida, again in a mall. तो दे गॉट मी ऑफर की अगर इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस, बिकॉज वो जो है जहाँ पे मेरी शॉप थी मॉल में क्या होता है कि यू हैव अ लिमिटेड कस्टमर। जैसे नया मॉल खुल जाता है तो वही कस्टमर आपका जो है वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। तो डोंट कि अब तेरा काम भी जो है थोड़ा सा जो है सेट हो गया, यू हैव फोर स्टोर इफ यू वांट। एंड माय वाइफ, वी हैड अ बेबी, तो वो भी बड़ी हो गई थी तो उसको भी घर पे जो है, तो अगर शी कैन look after your shop and you can, so we opened a restaurant in a mall। और 1 साल तक जो है वो खूब अच्छा चल रहा था, इट वाज गोइंग ग्रेट। लेकिन वी वर 3 पार्टनर ऑफ अस, 3 लोग थे हम लोग वहाँ पे। लेकिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी जो चीजें थी, जो एथिक्स थे ना, वो मुझे जो है नहीं ठीक लगते थे। अगर प्लीज पार्डन मी अगर किसी को यहाँ पे लग रहा हो हु इज इनटू होटल होटल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे लाइक दे यूज टू यूज कलर्स एंड ऑल। एंड जो है हम लोग बटर चपाती पे बटर के नाम पे वी यूज टू डालडा का जो है और बटर को मिक्स करके हम लोग जो है उसको बटर रोटी के नाम पे देते थे। तो दैट वाज नॉट एथिकल टू मी। मुझे लग रहा था नहीं यार कुछ गड़बड़ है, हम लोग इसको जो है ना ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे। और जैसा होता है कि ठीक है, एक जब तक हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था पार्टनरशिप वाज गोइंग गुड। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ, देन वी स्टार्टेड। पहले हम लोग जो है वी वर यूजिंग एमडीएच मसालास। लेकिन जैसे थोड़ा सा रेस्टोरेंट चलने लगा, वी स्टार्टेड कि चलो थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हैं, वी यूजिंग स्टार्टेड यूजिंग लोकल मसाला। एंड पहले हम लोग जो है यूज टू फ्रेश परचेज जो भी अपनी वेजिटेबल्स एंड मीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रेश परचेज करते थे। देन वी स्टार्टेड यूजिंग ईयरली बेसिस। उस पे क्या होता है ईयरली बेसिस में कि आपका पूरा जो है साल का एक ही रेट होता है। अगर ऑनियन 40 रुपीज़ है, 60 पहुंच गया तो भी 40 रहेगा, 20 पहुंच गया तो भी 40 रहेगा। तो उसमें जो है वो क्वालिटी जो है ना, वो उसमें ऊपर नीचे ये लोग भी करते रहते हैं। एंड somehow after 1.5 year we have to close that restaurant। और इन द मीन टाइम रिटेल बिजनेस की बात करूँ तो इट वाज गोइंग गुड। लेकिन माय वाइफ शी वाज लुकिंग आफ्टर, तो मैंने जो है आई केम इनटू दिस रियल एस्टेट बिजनेस। तो उसमें जो है वी वर इनटू सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मींस वी वर इनटू रीसेल।
प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो मार्केट होती है रियल एस्टेट में. वी वर इनटू सेकेंडरी मार्केट, रीसेल. और प्राइमरी होती है लाइक फ्रेश बुकिंग एंड ऑल, जो बिल्डर्स के थ्रू जो आप उनको बेचते हैं. तो आई वाज इनटू रीसेल. तो वो बिजनेस भी, इट वाज विद माय पार्टनर, ठीक था, चल रहा था वो भी अच्छा. एंड देन आई, रिटेल बिजनेस में जो है, आई थॉट कि अब जो है आई वोंट एबल टू कंटिन्यू में उसको, बिकॉज वी हैड अ सेकंड बेबी. तो मेरी वाइफ भी जो है, शी वाज नॉट एबल टू लुक आफ्टर. तो मैंने जो है, आई सोल्ड दैट माय रिटेल बिजनेस टू माय वेंडर फ्रॉम whom आई वाज परचेजिंग द गुड्स. मैं जिससे सामान ले रहा था, आई सोल्ड माय बिजनेस टू हिम, बिकॉज उसका भी जो है क्रेडिट, ही यूज्ड टू गिव मी क्रेडिट, तो उसका भी डेप्ट मेरे ऊपर आ गया था. देन वी सेटल्ड कि ठीक है, इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट जो है एज अ सिक्योरिटी आई हैव गिवन टू दिस, तू मुझे ये दे दे, एंड तेरा सामान जो है वो एज इट इज है. और जो भी है एडजस्टमेंट वो हमने करके, आई सोल्ड हिम माय रिटेल बिजनेस. एंड इवन आई सोल्ड माय शॉप. एंड आई invested that business, that money into real estate. And real estate में भी business going good. And then again it was a partnership. तो ऐसा होता है, because maybe मेरे साथ नहीं चल पाई, लेकिन it was like 8-10 years we did a good business. लेकिन after 8 years जो है, we decided कि हम लोग जो है अपना अपना काम करेंगे. We have to start breakup. तो आई वॉज लाइक मेन इन टू कमर्शियल, जो है कमर्शियल सेलिंग में था. देन आई डिसाइडेड कि ओके, आई विल गो इनटू कमर्शियल लीजिंग. तो उसमें जो है, आई डिड कमर्शियल लीजिंग एंड ऑल, जो भी चल रहा है मेरा बिजनेस. एंड बिफोर कोविड 2020, देयर वाज अ मोदी गवर्नमेंट जो है, दे टुक अ डिसीजन टू बैन दिस प्लास्टिक. उन्होंने जो है प्लास्टिक, जो पॉलीथीन जो है उसको बैन करने का 19 अक्टूबर को दे टुक अ डिसीजन ऑन गांधी जयंती. एंड वी डिसाइडेड, आई हैड गॉट एन ऑफर जो है कि हम लोग जो है ये इंडस्ट्री लगाते हैं नॉन वूवन बैग की. क्योंकि जो प्लास्टिक बंद हुआ था, तो वो नॉन वूवन बैग, जो दैट वाइट क्लोथ बैग, इट गॉट अपडेटेड. तो उसकी जो है हम लोगों ने इंडस्ट्री लगाई. और in January 2020 we invested again. We were three partner of us and we invested around 1 CR. हमने जो है उसमें इंडस्ट्री लगाई. एंड इन मार्च अगेन, थोड़ा थोड़ा जो है वो कोविड जो है, इट गॉट स्टार्टेड 2020 में जो है. एंड 24 मार्च से जो है लॉकडाउन ही शुरू हो गया था. एंड इन मार्च जो है हमारे पास ऑफर आया. वी हैड, हमें जो है उसमें जो थोड़े कन्वर्जन, जो मशीनरी जो थी उसमें थोड़े चेंजेस करके, वी स्टार्टेड मेकिंग मास्क, दैट 3 प्लाई मास्क जो है. एंड वी स्टार्टेड गेटिंग इट एक्सपोर्ट. हम जो है उसको एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इंडिया में जो है अभी कोविड नहीं आया था इतना. लेकिन बाहर जो है वी गॉट ऑफर्स, जो है हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया. एंड विद इन मार्च ओनली हम लोगों जो है अराउंड 8-10 मार्च से हम लोगों ने स्टार्ट किया. अराउंड 24 मार्च जो है लॉकडाउन लग गया. एंड विद इन अराउंड 15 to 20 days हम लोगों ने 24 आवर्स रात दिन जो है वो फैक्ट्री चलाई. एंड वी रिकवर्ड द होल अमाउंट, जो भी हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया था ऑफ 1 CR, वी रिकवर्ड दैट अमाउंट विद इन 50-20 months. तो आई कैन से जो है मेरे लिए जो है कोविड, इट गॉट वेरी लकी. एंड अगर 24th को लॉकडाउन नहीं लगता, तो शायद भगवान की दुआ से और आगे चलता. लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस. एंड इवन जिस दिन लॉकडाउन लगा था 24th को, वी हैड वी हैड एन ऑर्डर ऑफ 30 लाख, जो है वो रात को जो है क्लाइंट का जो है, ही हैज टू टेक इट विद हिम, एक्सपोर्ट होना था. और रात को हमें जो वो 9 बजे जो है, जब वो शाम को लॉकडाउन लगा, बिकॉज फ्लाइट वॉज नॉट, जब मोदी ने डिसाइड किया तो उस टाइम जो है फ्लाइट वॉज हॉल्ट. तो उसकी फ्लाइट भी जो है रात को 9 बजे जानी थी. इट वॉज scheduled to fly away, but he could not fly away.
और रिंकेश वो जी, जो थोड़ा सा मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप जो मटेरियल जो एक्सपोर्ट करते थे, व्हाट आर द मेजर कंट्रीज, कहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते थे? it was इज इट basically into like uh, this Iraq, ईरान, और ओके? उस टाइप में जो है, उस साइड जो है उस टाइम जो है वेव आई थी इसकी, आपकी जो है कोविड की, इट हैज स्टार्टेड। तो इट वाज बेसिकली इराक, ईरान और उस साइड जो है हम लोग इसको एक्सपोर्ट, बिकॉज बायर यूज टू कम इन इंडिया, वो हमारे पास, हम नहीं चाहते थे उनके पास, दे यूज टू कम, और वो यहीं से जो है अपना पैक करके जो है ले जाते थे। एंड 30 लाख का जो है हमारा ऑर्डर जो है इट गॉट कैंसल्ड। हमें जो है उसको 30 लाख जो है ले जाना था उसने रात को, लेकिन उसकी फ्लाइट जो है वो कैंसल हो गई, एंड ही यूज, वो अपना माल नहीं ले जा पाया। तो वी हैव टू कैंसल एंड रिफंड हिम द अमाउंट। और जो 30 लाख का जो वो मास्क का जो वो स्टॉक था, फिर लॉकडाउन हो गया एंड वी हैव टू शट डाउन अवर फैक्ट्री। और हमें जो है वो 30 लैक्स का जो है लॉकडाउन के बाद जब खुला, तो हमें जो है उस माल को जो है वी सोल्ड इट फॉर 4 लाख रुपीज, बिकॉज डिमांड जो है उसकी काफ़ी कम हो गई थी एंड कंपटीशन जो है बढ़ गया था। जो मास्क हम 18 रुपीज़ का बेचते थे, 15 to 18 रुपीज़ का वी सेल, इट केम डाउन टू 1 रुपी, 2 रुपीज़ जो है उसका रेट आ गया। देन आफ्टर लॉकडाउन फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन मास्क की जो है डिमांड कम होनी शुरू हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, रेट जो है वो गिरने लग गया उसका। देन वी, आफ्टर 6 मंथ वी शट डाउन दैट मार्केट, शट डाउन दैट फैक्ट्री, एंड आई केम इन टू दिस डेनिम बिजनेस, जो कि मेरा लेडीज डेनिम मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट हमने लगाई, और अभी जो है वो चल सो रही ये है। जो अपने जो लेडीज का जो डेनिम बिजनेस जो करते हैं आप, ये क्या पहले से ही आपका एस्टेब्लिशमेंट था कि आफ्टर इट द वाज, कोविड? मेरे पार्टनर्स का जो है, इट वाज देयर एस्टेब्लिशमेंट, उनका पहले से था, तो आई आल्सो जॉइंड देम, एक यूनिट मैंने भी जो है लगा लिया फिर उसी में। ओके, तो वही चीज है। तो राइट नाउ जो है ये है मेरा स्टार्टअप्स की जो है great, बिजनेस। और great. You have a great skill, exactly. So you are into the long journey, into the entrepreneurship journey. We have seen that exactly how is it up and down. Nothing is easy way to get the things. And जो लोगों को लगता है कि सारी चीज इजी वे में लोगों को मिल जाएगा, it's not like that. नहीं, You have to do the hard work to get the things. The राइट। और reality इट सो वाज, लोगों को दिखता या है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन द बिगनिंग, मतलब आई वाज Yeah, इनटू सर्विस इंडस्ट्री, टोटली सर्विस, शुरू से सर्विस दी है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में घुसना इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि वहां पे जो है यू हैव अ लेबर वर्क, और लेबर से काम निकलवाना जो है ना, मतलब फ्रैंकली मतलब बहुत मुश्किल हुआ स्टार्टिंग में, एंड आई स्टार्टेड, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं भाग जाऊं, मैं बंद करके इसको, मैं नहीं सस्टेन कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब यू हैव टू, आपको उनसे काम निकलवा, बिकॉज दे आर ओनली वेजेस, डेली वेजेस के वो लेबर होती है, और वो अगर आप देख रहे हो उनको टोक रहे हो तो वो काम करते हैं, नहीं बोलोगे तो वो बैठे हैं अपना बीड़ी पी रहे हैं, और दे यूज्ड टू स्मोक एंड ऑल। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, उनके सर पे बैठ के काम निकलवाओ और करो। तो लेकिन it's a part of business, you have to change yourself, you have to grow according to that, and I did. great. Yeah, absolutely. Yeah. Right. So I'm just asking you the another things. What do you think are the traits or the characteristics of an entrepreneur? What are the things Yes, entrepreneurs should have? yes, it's a very uh, गुड क्वेश्चन, क्योंकि कई बारी, जैसे आई हैव बीन इनटू लीजिंग बिजनेस, तो लीजिंग बिजनेस में क्या है कि लाइक जैसे कोई बच्चे हैं, लाइक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में मतलब लाइक इवन दे आर माय कस्टमर्स नाउ, कि वो आते हैं, 4-5 इंजीनियर हैं, दे आर इनटू आईटी इंडस्ट्री, दे आर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दे आर वर्किंग। फिर वो आते हैं कि नहीं कि जी हमें जो है अपना स्टार्टअप करना है, आप बताओ कैसे हेल्प कर सकते हो आप हमें, बिकॉज यू हैव नॉलेज, आप हमें जगह दिलाओ। because along with places we are also into hardware support also, हम लोग उनको लैपटॉप भी रेंट पे देते हैं, we used to give them computers also on rent, and even we are also helping call centers, तो उनको हम लोग डायलर भी प्रोवाइड करते हैं,
PRI, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है चीजें जो है कॉल सेंटर को चाहिए होती है, तो वी यूज टू प्रोवाइड देम ऑल्सो। तो मतलब मैं उनसे तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, और इवन दोज हु आर लिसनिंग टू मी, इफ यू आर प्लानिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप, देखो जॉब में जो है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैंने भी डिडंट डू, लेकिन आई डिड फॉर 1 ईयर, वो भी सेल्स की जॉब है। लेकिन जॉब में क्या है कि इफ यू हैव पर्टिकुलर टास्क, कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हो, तो यू हैव टू डेवलप, यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग। आपको और कुछ एडमिन से नहीं लेना, या अकाउंट से आपको नहीं लेना देना। और वही चीज है, अगर आप ट्रेनर हो, तो यू हैव टू ट्रेन पीपल, यू डोंट हैव टू लुक डेवलपमेंट या और चीजें आपको नहीं देना। लेकिन व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, देन यू हैव टू बिकम एन ऑलराउंडर। अगर आपका पियून नहीं आया, तो आपको अपने क्लाइंट को पानी भी पिलाना है। अगर आपका, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इफ यू आर अ स्टार्टअप, अगर आपका इवन यू हैव, चौकीदार नहीं आया, तो आपको सुबह जाके लॉक भी खोलना है, सब कुछ करना है, फिर उसके बाद साफ भी करना है अपना कैबिन जो है थोड़ा सा। एंड मतलब यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर। खाली आपको ये लगेगा कि यार मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, और इवन आई हैव क्लाइंट, मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सजेशन ये नहीं है, बिकॉज अगर आप वो मेंटालिटी लेके चल रहे हो कि मेरे को जो है सिर्फ डेवलपमेंट है, तो मैं डेवलपमेंट पार्ट देखूंगा, तो वो नहीं चलता बिजनेस में। यू हैव टू You बी have एन to be down to earth. Down to earth. Exactly. डाउन टू अर्थ, यू Yeah. हैव टू बी एन ऑलराउंडर, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस। इट्स योर बिजनेस, इट्स योर बेबी, यू हैव टू ग्रो इन होगा। तो वो चीज है। एंड एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बातें करूं, तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो 5 ट्रेड्स जो हैं, जो मैंने देखे हैं, जनरल 5 ट्रेड्स विच यू हैव टू, अगर आपके खून में, कई बार कहा जाता है ना कि बिजनेस तो इसके खून में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई घर से पैदा होके, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि जिनके शुरू में बिजनेस है और वो पले बड़े उसी माहौल में हुए हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट एज एन एंटरप्रेन्योर, दीज 5 ट्रेड्स यू हैव टू गेट देम। सबसे पहला उसमें जो है, यू शुड हैव अ थिक स्किन। थिक स्किन इन अ सेंस कि आपको जो है, you have to get ready to listen everything from your customers, from your, even from your family, even from your relatives, क्योंकि सबको आपकी कमी ही दिखेगी, आपकी बड़ाई कुछ नहीं दिखेगी। तो यू हैव टू हैव अ थिक स्किन। एंड सेकंड, you have to have a fortitude. Fortitude in a sense, you have to have a courage. करेज इन प्रेस, करेज इन पेन, करेज इन एडवर्सिटी। क्योंकि बिजनेस है, जैसा मैंने बताया, जैसे आपने भी बोला, इट कैन गो अप एंड डाउन। आज बिजनेस आपका अच्छा है, 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि कैश फ्लो है, 6 महीने बाद वही कैश फ्लो बंद हो जाता है। आज मेरा बिजनेस है, इट्स गेटिंग डाउन नाउ, क्योंकि रिटेल जो है वो कम, वी आर सप्लाइंग इट टू स्टोर्स लाइक विशाल, मेगा मार्ट, वी मार्ट। तो वहाँ पे क्या है कि अब स्टोर्स की सेल कम हो रही है, बिकॉज ऑनलाइन इज कैचिंग अप, ई कॉमर्स का जो है टाइम आ रहा है। तो स्टोर्स आर, उनकी सेल कम हो रही है, प्लस रॉ मटेरियल जो है, जो हमें 150 रुपीज मीटर मिलता था, जो रॉ मटेरियल, जो क्लोथ, डेनिम क्लोथ, आज की डेट में जो है वो 200, 210, 220 रुपीज पहुंच गया। तो 50-60 रुपीज जो है रेट बढ़ गया है। एंड वी हैव अ मार्जिन, बिकॉज वी हैव गिविंग देम होलसेल, तो मार्जिन जो है हमारा 25 to 30 पीस, 30 रुपीज रहता है। तो माई सेल इज गोइंग डाउन। लेकिन आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, अगर अच्छी चीजें देखी हैं तो बुरी चीज के लिए भी तैयार रहना है। तो यू हैव टू हैव करेज, यू हैव टू हैव, कोई भी एडवर्सिटी आती है, यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम। एंड थर्ड इज, यू हैव टू बिल्ड अ ग्रेट नेटवर्क। बाय गॉड ग्रेस, मैंने जो है अच्छा एक नेटवर्क था, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटीज, जैसे जैसे, बिकॉज बिजनेस इज अ टीम वर्क। आप अकेले सोचो कि मैं बिजनेस कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता। इट्स लाइक अ टीम, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स में जो है यू हैव टू प्ले लाइक अ टीम। बिजनेस में भी जो है इट्स लाइक अ टीम, यू हैव टू प्ले लाइक अ स्पोर्ट्स। तो यू शुड हैव अ बिल्ड अ ग्रेट नेटवर्क, जो कि आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी चीज की, बिकॉज आई गॉट एन ऑफर ऑफ रेस्टोरेंट, देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम, ये सब चीजें मैंने अकेले नहीं करी। आई हैड पार्टनरशिप, आई हैव द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी थे,
तो दे गेव मी ऑफर्स, या मैंने उनसे पूछा कि कुछ ऑप्शंस हैं, एंड यू योर शुड माइंड शुड बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज कहते हैं ना, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, when it is open, then only it works. Same here, you have to always look for opportunities. And fourth is, look to praise, not to be praised. अगर आपको हैबिट है कि आपको सुनने की आपसे बॉस से या मैनेजर से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये बिजनेस में आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आपको क्लाइंट, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो उसके लिए, कोई भी आपको क्लाइंट आके ये नहीं बोलेगा कि सुदीप जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया। तो यू हैव टू लुक फॉर प्रेज, नॉट टू बी प्रेज्ड। एंड फिफ्थ इज सेल्फ मोटिवेटेड। you have to remain you have to remain self motivated, because it's not like जॉब की अगर आप गए तो आपको पता है कि आप जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं गए तो पैसा कटेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड। एंड सिक्स जो है बोनस है, वो मैंने यहीं पे आके सीखा, बिकॉज इट इज अ पैशन। इफ यू आर नॉट, जैसा मैंने बताया कि आई वॉज नॉट पैशनेट अबाउट रिटेल इंडस्ट्री, आई वॉज नॉट पैशनेट अबाउट होटल इंडस्ट्री, स्टिल आई एम नॉट पैशनेट अबाउट जो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, आई लव दिस होलसेल, दिस लीजिंग बिजनेस, कोचिंग, like real estate leasing business, क्योंकि I have interaction with people, but I don't love this my manufacturing business, because उसमें लोगों के साथ interaction नहीं है। And that's why I came into this coaching business for entrepreneur, for startups की, because I love being into interaction. तो पैशनेट, दिस वर्ड आई केम आफ्टर ज्वाइनिंग पैशन पिनियर, जो कोर्स जो हम लोगों ने किया। आई फाउंड दिस पैशन कि हाँ यार, ये बाकी जो है ये चीज होती है कि इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट सम वर्क, तो वो आप ज्यादा दिन उस चीज को जो है नहीं कर पाओगे। तो दीज आर Correct. 5-6 traits which I think every entrepreneur should have. That's true. That's true. Absolutely correct. Yeah. So, in a gist, what I want to say here, the three C, if you keep in mind, the three C is the first thing is the consistent commitment and the courage. These three C is very important to grow anywhere. Even though the entrepreneurs, if you want to grow in your career everywhere, these three C is very important. If you are not committed to do anything, so you won't get the success, whatever you want in your life. Right, And right, what Dinkeshji, what he is talking about the networking. Networking is the very important things. It's everywhere throughout the world. You are in your own business or you are in the job. If you want to grow, you have to be a very good network. It will right, have if you have the very good network. नेटवर्क अगर जिसका जितना अच्छा है उतना अच्छा वो right, आगे बढ़ पाएगा। right, ग्रोथ के लिए वो बहुत जरूरी है नेटवर्क। right, विदाउट नेटवर्क आप ग्रो नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते। Wherever you are, even though in job or might be the you are in your journey of the entrepreneurship, wherever, कहीं पे भी। right. So thank you, Rinkesh ji. So moving into the next questions from my end to you. So एक एंटरप्रेन्योर के एक जो वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए, तो वो कौन सा एबिलिटी है आपको लगता है? आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, तो आपको क्या लगता है एक जो एबिलिटी हो एक एंटरप्रेन्योर का होना बहुत जरूरी है? सर, फ्रैंकली बताऊं तो इट इज जो है, हम लोगों को एक हैबिट होती है, डर होता है नो सुनने का। हम लोग जो है कहीं से भी, आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड, अगर मुझे कोई नो कह देता तो मैं उसको दिल पे ले लेता था कि यार इसने मुझे नो कैसे कह दिया। तो ये एक एबिलिटी जो है हर किसी के अंदर जो है, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए सुनने की। एंड दैट वी लर्न फ्रॉम सेल्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नो सुनोगे लाइफ में, जितना ज़्यादा आप रिजेक्शन आपको मिलेगा लाइफ में, उतना ज़्यादा आप, आई थिंक सो, उतना ज़्यादा आपके अंदर ग्रो करने की जो है आपके अंदर क्षमता आएगी, पावर आएगी। तो नंबर वन स्किल, नंबर वन एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जो कि हर चीज में उसको चाहिए होती है, दैट इज आई थिंक सेल्स। चाहे आज की डेट में हम उसको हाइड
टिकट सेल्स भी बोलते हैं, हाई टिकट एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, हाई टिकट कोचिंग भी बोलते हैं, दे हैव लॉट ऑफ नेम। बट आई वुड रिकमेंड कि सेल्स जो है ना, ये हर इंसान को जो है सीखनी चाहिए। बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेजेस आपको लीडरशिप सिखाएगी, मैनेजमेंट सिखाएगी, दे हैव डिफरेंट कोर्सेज, बट नो वन टीचेस यू सेल्स, जो कि आपको अपने एक्सपीरियंस से आती है। बिकॉज सेल्स इज समथिंग विच यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस, चाहे वो आप अपने बॉस से कर रहे हो, या कुलीग से हो, या अपने वाइफ से या बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हो, दिस इज ऑल सेल्स बेसिकली। So I think the number one ability which an entrepreneur or which a person should have is a sales. He should Exactly. learn how to sell, how to, क्योंकि जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, स्टार्टअप्स जो है फंडिंग्स मिल रही है। यू हैव अ ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ शार्क टैंक। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग देमसेल्फ। चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, इफ दे आर नॉट एबल टू सेल देम, तो दे आर ऑफ नो यूज, दे वोंट गेट फंडिंग। हम आई लोग थिंक सेल एवरी जगह पे करते हैं नॉर्मली। आप घर से सुबह उठ के आपके बच्चे को भी, बच्चे के साथ भी सेल्स करते हैं हम लोग, राइट, वाइफ राइट, के साथ भी सेल्स करते हैं। ठीक है, राइट, ईच एंड एवरीवेयर इन योर लाइफ। इवन दो मैं बोलता हूँ कि जो जॉब भी चाहिए ना, उसको भी जॉब में जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू इज नथिंग बट ए सेलिंग योर सेल्फ इन हाफ एन राइट, आवर। वो आधा राइट, घंटे के अंदर आपको समझाना है यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। राइट, वो अगर आप समझा पाया वो आधा घंटे के अंदर, तो आपको वो ले लेगा कैसे भी करके। So that is the thing. Sales is the one of the great skill. Another great answer you have given, that particular the failure. You have to be fail in your life. Then only you will understand. You will understand the flavor of the success. एक फेल हुआ मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गए आप सक्सेस के। और जितना फेल होते जाएंगे, और यू हैव टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी फेलियर। क्या आप सीख सकते हो उस फेलियर से, और ट्राई टू इम्प्लीमेंट फॉर योर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द गोल्स। कि मुझे ये चीज फेल हुआ है, ठीक है, लास्ट टाइम आई हैव टू इम्प्लीमेंट सम, री इम्प्लीमेंट सम डिफरेंट वे। लेट्स सी वेदर इज इट वर्किंग और नॉट। Again you mold yourself like that way. That is the basically the things. And another things what I, because my entrepreneurship journey, because I have started my career, as you all know that, those who are listening to us, I started my career in sales. 3.5 years I was in sales, and then I moved to IT basically. And today I'm working with the IT organization, and there is also I'm doing the sales mostly. Okay, because the handling the clients in all those things is nothing but a sales after all. Although doing the software development and all, but ultimately you have to sell yourself. Getting the project is very important. Without projects, so there is no development, no nothing will be happen. And sales is the basically the core things for the revenue transactions। कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो सेल्स के तरह, सेल्स ही लेके राइट, आता है। सेल्स अगर किसी को नहीं आता है, देर इज नो फ्लो ऑफ द मनी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मनी फ्लो नहीं है तो देर इज नो सैलरी, नथिंग यू विल गेट, नो वन विल गेट द सैलरी at the end of the day. राइट। So yeah, Rinkesh इवन ji, so whatever इवन you told is या really, yeah, इवन go ahead. इवन योर beautiful book, the change, what's change of your Yeah, career, take what, charge. Yeah, the book name is the Take Charge of Your Career. Be the take charge boss of your of your career. life. Good. Even Yeah, this is also, you will be, you are known as, and you will be known as best selling author, yeah, not best writing author or best something best, correct, because it is also a correct, correct, sale. You're best correct. selling author. So Everywhere, that was, everywhere. Sales is yeah, everywhere. everywhere. Sales is everywhere. No, Correct, nobody is told he's a best writing author or he's the correct, best correct, leading author, best selling correct, author. Yeah. correct, correct. So looking forward to your book also. Yeah, yeah, yeah. So the most important thing what I understand exactly from my experience and all, first you have to change your mindset. So I will ask you, Rinkesh, ji, how do you break the shackles of your mind? Because you have started your journey as in a job, उसके बाद आपने change किया from the job to the entrepreneurship journey. So how do you change your mindset in that aspects? Sir, it's a, मतलब mindset is nothing. वो it's totally depend on कि आप किस चीज को कैसे लेते हो, right? And
one thing which helped me a lot is morning routine. आई एम अ ग्रेट फॉलोअर, मतलब मैं जो है, मतलब ये नहीं है कि आई वेकअप एट 5, जो है अगर मैं रात को लेट भी सोते हैं सब कुछ है, बिकॉज हो ही जाता है लेट होना, तो आई यूज टू गेट अप एट 7 ऑल्सो। और मेरे को कोई ऐसे, बिकॉज बीइंग इनटू बिजनेस ऐसा नहीं है कि मेरे को ऑफिस 9 बजे या 9:30 बजे पहुंचना है। आई यूज टू गो एट 11, आराम से मैं जाता हूँ। और आई हैव अ रूटीन में मॉर्निंग में जो है, एंड चाहे मेरे को 7 बज जाए, 7:30, 8 बज जाए, आई यूज टू गो टू पार्क। मतलब डेली मेरा रूटीन है, आई एम गो टू पार्क, और वहाँ पे जो है आई डू थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, रनिंग, एंड आई डू मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है, इट्स अ लवली थिंग। मतलब हर किसी को जो है वो अपने, एंड आई हैव सीन यू, इवन यू आर टीचिंग ऑल्सो पीपल मेडिटेशन, एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट। मतलब आई यूज टू, मेरे को भी याद है व्हेन वी वर मेकिंग मास्क, तो हम लोग जो है 24 घंटे फैक्ट्री चलाते थे। तो आई यूज टू स्टे, बिकॉज आई वॉज लुकिंग आफ्टर प्रोडक्शन, तो आई यूज टू स्टे इन माई फैक्ट्री। जो है रात को मैं रहता था वहाँ पे, एंड आई यूज टू वेकअप, पूरी रात मैं जागता था, क्योंकि नहीं जागो, थोड़ी देर भी सो जाओ, तो वो लेबर भी आपकी सोने चली जाती थी। तो यू हैव टू Correct. स्टैंड ऑन देयर हेड। तो Correct. और मैं जो है सुबह जो है फैक्ट्री की छत पे जाके, एंड आई यूज टू डू मेडिटेशन। और पूरा दिन मुझे ऐसा लाइट और ऐसा फील होता था कि, मतलब मुझे फील नहीं होता था कि मैं रात को नहीं सोया। Correct. आई यूज टू फील फ्रेश। बीच में दोपहर को जो है थोड़ा सा झपकी टाइप लगा ली, यूज टू टेक नैप एंड ऑल। लेकिन मेडिटेशन एट हेल्प मी अ लॉट। एंड बात करें बिजनेस की, माइंडसेट की, तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर कंपनी कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। आई बीन फ्रेंड्स टू लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर, और जैसा मैंने देखा है कि आपकी कंपनी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप जो है, अब ये नहीं है कि अगर आप आप अपने जॉब से या बिजनेस में अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, और आप जो है आपकी फ्रेंडशिप जो है उन्हीं 50,000 लोगों से है, तो आप कभी 1 लाख वाले पैकेज में नहीं पहुंच पाओगे। इफ यू हैव टू ग्रो, तो आपको फ्रेंडशिप जो है अपना 1 लाख वाले दोस्तों के साथ अपना सर्कल बनाना पड़ेगा। एंड उसी टाइप से जो है, मैंने भी जो है अपना सर्कल जो है, मेरे हमेशा कोशिश रही कि अपने से जो है बड़े वालों के साथ सर्कल बनाऊं, और नो डाउट उसमें सफल रहे। और आगे चीज़ें जो हैं, आप लोगों के साथ जो है सहयोग रहा, तो बहुत जल्दी हम लोग भी बीइंग कोचिंग बिजनेस में जो है अपना अच्छा कैरियर जो है वो डेवलप करेंगे। तो Correct. दिस इज व्हाट Correct. आई वांट टू से अबाउट माइंडसेट Yeah. जो है। Yeah. हम्म। So those who are listening to us, so जो लोग आप लोगों को सुन रहे हैं अब तक, so I want to say the Rinkesh ji in a mission to empower the startup, basically the 1 million startup business owner to add more profit and sustainability through his principle based coaching. So if you are the really want to start up your business, so you can connect with Rinkesh ji, where he will help you out because he has almost more than 2 decades of experience in this particular field, and he can guide to you how to start up the journey. Because the any entrepreneurship journey शुरू करने से पहले आपका mindset clear करना बहुत जरूरी है. If you are not as a entrepreneurship mindset आपका अगर नहीं है, आपका अगर mindset है 9 to 5 जॉब के जैसा mindset है, you can't be a successful entrepreneur. And जहाँ पे रिंकेश जी आपको हेल्प करेंगे how to grow yourself in your startup business. What are the major difficulty you may get during your the business journey? So definitely, so he will be helping you. You can connect with him. And my name is Sudip Maiti. I'm a early career designer. Okay, I'm mostly helping the early career as well as those who are already in the career. I want to help them to get the new job, or might be the different kind of the interview like a project interview. If you are in the industry already, if you struggle to get the projects, so because the each and every project when you will change there will be the interview. If you are failing that particular interview,
interview, so you won't get the project. As well as so visa interview, client interview, those are the different kind of the interview you can see when you will be already into the job. And more or less on top of that, I'm helping the early career also. Those who are already pass out from the college, they want to join to the industry. If they face any kind of the challenge in terms of the interview, you can connect with me. So thank you, Rinkesh ji, for your time. And those who are listening to us, I would say so. So thank you, thanks all of you. My humble request, you are at least listening to us. And if you feel that it's a really great show, so please subscribe the channel and ask the people to listen to us. And that way, I want to create the movement throughout the India, so whether we can grow in our career in terms of the job or might be the entrepreneurship journey based on your choice. So thank you. So that's it from my end. So Rinkesh ji, if you want to say anything, so you can conclude the things. Yeah. मतलब जो है मेरा दोज हु आर स्टार्टिंग देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी और मतलब लोगों के दिमाग में जो है बिजनेस करने से पहले हर किसी के दिमाग में ये होता है कि मेरे पास जो है बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही अ, मतलब सुझाव है, सजेशन है कि जो है बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, बिजनेस के लिए जो है आपको पैशन चाहिए होता है। क्योंकि ठीक है यार, बिजनेस में जो है पैसा चाहिए भी होता है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ लाइक 20 years ago, देन यू नीड अ लॉट ऑफ हेल लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। लेकिन आज की डेट में यू हैव सो मच अपॉर्चुनिटी, व्हाट यू नीड ओनली अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। एंड यू कैन, एंड इवन आज की डेट में जो पीपल आर अर्निंग थ्रू दिस तो है। तो जो लोगों के दिमाग में है कि यार मेरे को जो है बिजनेस के लिए पैसा जमा करना है या पहले मैं पैसा जमा कर लूँ, तो वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक योर माइंड कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू गाइड यू। और जो चीज़ें हमारे से जो चाहते हैं हम लोग, जो एज अ कोच जो है हम लोग चाहते हैं कि पीपल जो है जितना ज़्यादा आगे लोग ग्रो करें, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर लोग बने, उतनी ज़्यादा जो है ग्रोथ जो है हमारे इंडिया की जो है वो होएगी। तो Correct. कुछ भी नहीं है। और आज की डेट में यू हैव सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम। आपकी डेट में सिर्फ आपको एक घर से भी जो है आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बस यू नीड अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप जैसे बोल रहे हैं ना घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक स्मॉल स्टोरी बोलता हूँ। कुछ दिन पहले मैं ही पढ़ रहा था, यू एवरीवन नोज अबाउट दिस पर्सन, द जेफ बेजोस, द अमेज़न ओनर। ओके, राइट। 94 में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ही वाज इन द फाइनेंशियल डोमेन। ही क्विट हिज जॉब, और जॉब छोड़ के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उन्होंने साउथ अफ्रीका का एक रिवर है अमेज़न, उसके नाम से वो कंपनी खोला था, amazon.com। और आज के दिन में वो वर्ल्ड का टॉप 2 बिजनेस लीडर में एक है अमेज़न। और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उनका खुद का घर के गैरेज पे, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। ही वाज सिटिंग अलोन, एंड यू कैन सी हिम आल्सो इन हिज फोटो, how he looks during that period of time when he has started his business। एंड आज के दिन में वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सो देर इज ए हेल एंड हेवन डिफरेंस। ओनली थिंग इज दैट योर विजन एंड मिशन शुड बी वेरी क्लियर, क्या करना चाहते हैं आप। उस विजन के आपको उसके साथ में लग के वो आगे बढ़ाना है, क्योंकि दैट इज योर ओन बेबी। यू हैव टू ट्रीट द बिजनेस एज योर ओन बेबी, एंड उसको अपने आप बेबी को जैसे ग्रो करवाते हुए आप उनको हेल्प करते हैं, द सेम वे में उनको भी हेल्प कीजिए, बिजनेस को भी उस तरह का ट्रीट कीजिए, सो दैट इट विल ऑल्सो लव यू वन डे, if not today, maybe the tomorrow, right? So there will be the always the success and the failure will be there. You have to accept each and every moment of your life. Don't think that everywhere you will get a success in your life. Don't think that you have a huge degree is not nothing. It's basically the bookish knowledge in for your business or anything.
This book is knowledge, it's not required. Only thing is that you should require your intelligence. That's it. Use your mind which way you want to grow, so you can grow. It's nothing difficult in this world. इतना ही मैं बोलता हूँ सबको. Right. Thank you, Rinkesh ji. Have a Thank you, good sir. day. Thanks for your time. We are closing the session here itself. Right. Thank you.